Salam. My name is Bartholomew J. I am the Director of Training and Certification at the National Fire Protection Association, NFPA. I would like to thank Mosh Consultants for hosting the first NFPA training in Pakistan, and especially to Mr. Humayun, who has been working diligently for years to bring NFPA training to your country. I am grateful that he was able to work with Mosh Consultings to join the NFPA Authorized Education Network and arranging this first of many training classes. I would like to also thank Mr. Ahmed Al-Subay, an approved instructor within our network who is teaching this class. I am sure he will be bringing his deep expertise and experience to help you learn more about NFPA 25, Standard for Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems. This class is so important to help make sure that the fire sprinkler systems that were designed and installed in your buildings are in proper working conditions. Finally, I would like to thank you for attending this training program. It is because of skilled professionals like you that help to activate the fire and life safety ecosystem and save lives and protect properties each and every day. At NFPA, we have a saying, it's safety doesn't happen by chance. This is true because of professionals like you who invest your time, energy to learn and bring safety to your people. Keep being curious, keep learning. Let this be the beginning of the next part of your journey as a safety professional. Come learn more about our codes and standards and everything that we have to offer to help you keep your people more safe at www.nfpa.org. Thank you again for being part of this historic event. I wish you all well. Sukran. And before welcoming, I must say that my brief was not that brief. It was detailed brief, and I have not done that much which has been expressed. I'm standing in front of my colleagues, I will not call my juniors, and many seniors. I'm really humbled to have got this pride moment. Rather, it's giving me more pride than having this NFPA certification. That the people are here to support the good cause, which whatever we are making, not I am making. I also learned from the seniors sitting here that it has to be a we attitude, not the I. So it was not Mr. Humayun's achievement, it was our achievement, which was made, and the industry has taken the benefit. Thank you. So, and trained over 500 safety professionals who are now at very senior posts across the industry, not just in insurance and other industries as well. Sorry. He supported work of global insurers as well, like Munich Re and Swiss. Mr. Humayun has been serving professionally in the Fire Brigade Department for the past 34 years. Under his leadership, Karachi's coastal rescue services play a vital role in ensuring the safety of citizens. Also, in the urban search and rescue team operating under his command recently played a significant and effective role in the rescue operations during the building collapse in Liari. A clear testament to his leadership and team's expertise. So please welcome Mr. Humayun. आसानी हो जाएगी और क्योंकि आप हम जो करते हैं फायर फाइटिंग ही करते हैं। अभी हाल ही में 200 तकरीबन आई चंद्रिका रोड का मैंने तमाम बिल्डिंग्स का विजिट किया, वहाँ पे सर्वे किया, शाहराय फैसल का सर्वे किया, तारिक रोड का किया, 266 बिल्डिंग्स का जब सर्वे किया तो उसमें से मुश्किल से जो है 15 के करीब जो बिल्डिंग थी जिनमें फायर फाइटिंग सिस्टम था। बाकी जो जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग थी, चाहे वो XYZ मीडियाज की हो, स्टॉक एक्सचेंज हो आपका, सब में कहीं ना कोई कमी पेशी सामने आ रही थी। यहां तक के चंद एक ऐसी बिल्डिंग्स थी जिनका मैं नहीं नाम लेता, तमाम चीजें परफेक्ट थी। एग्जिट डोर भी थे, फायर फाइटिंग सिस्टम भी था, सब चीजें थी, लेकिन ऑपरेट करने वाला नहीं था। जब पूछा कि इनको ऑपरेट कौन करेगा तो कहने लगे कि ये सिक्योरिटी वाले करेंगे। लेकिन मकसद कहने का ये कि इनकेस जिस तरीके से कराची में आए, गुलिस्तान जौहर में RJ मॉल का वाकया हुआ, 11 लोग उसमें एक्सपायर हुए,
तो जब इस तरीके के इंसिडेंट होता है या अभी लियारी में बिल्डिंग गिरने का वाकया हुआ, वहां पर भी तकरीबन 27 लोग एक्सपायर हुए, उस वक्त कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो इट्स मीन्स फायर को जो समझेगा वो फायर फाइटर ही समझेगा। आप तमाम चीजें इंस्टॉल कर दें, तमाम चीजें उसमें अच्छे से अच्छे हाइड्रेंट्स हो, स्प्रिंकलर सिस्टम हो, तमाम चीजें हो, लेकिन अगर उनकी देखभाल के लिए हम रखते हैं HSC ऑफिसर, लेकिन हेल्थ इसी तरीके से अगर फायर फाइटिंग टीम वहां पर मौजूद हो, उसकी क्या है नेचर जो भी यही होती है कि वो तमाम फायर हाइड्रेंट्स को, इन तमाम चीजों को अपडेट रखना। अवेयरनेस तो हमें आ रही है बिल्कुल इसी तरीके से आ रही है कि जैसे अल्लाह ताला कुरान में हमें तमाम चीजें बयान कर देता है और हम खुद ये कहते हैं कि यार हम पाकिस्तानी हैं, हम इस पे अमल नहीं करते, लेकिन जो अंग्रेज हैं वो अमल करते हैं। कुरान में है कि सच बोलो, ईमानदारी से, किसी का हक ना खाओ, तो ये तमाम चीजें बाहर पाई जाती हैं। इसी तरीके से NFPA के भी तमाम जितने भी इन्होंने इंसानियत और प्रॉपर्टीज को सेव करने के लिए कोर्ट्स अपने 300 के करीब इनके कोर्ट हैं जो बयान किए हैं, उन पे इम्प्लीमेंट जो है लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो लोग तो कर रहे हैं और यही वजह है कि वहां पर फायर का रेशो बहुत कम है। लेकिन यहां पर अगर जो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही और निचली सतह पर नहीं जा रही है, उसकी सिर्फ और सिर्फ कमजोरी जो है वो अवेयरनेस है। अवेयरनेस तो इस अवेयरनेस को बेसिकली सतह पर जो है प्राइमरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस, पहले होती थी ये क्लासें, अब नहीं होती। अभी भी हमने ये समझे कि जितनी भी इंटरेस्टेड है तब इनको जो है हमने बाकायदा फाइट टेंडर दिए और इनको हमने बाकायदा एक जो MOU साइन किया उसमें भी हमने रिक्वेस्ट की है कि आप हमसे ट्रेनिंग्स लें, हम आपके फैक्ट्री का सर्वे करेंगे, जो जरूरी इकदाम होंगे कबल इस वक्त हम आपको बताएंगे। और उसमें ये होगा कि हमारा जो फायर फाइटर आग लगने के टाइम पर आप कॉल करेंगे, वहां पर जाकर जब वो फायर फाइटिंग करेगा तो उस वक्त हमें रूट्स नहीं पता होते, रास्ते नहीं पता होते, तो इट्स मीन्स जब हम हमारे फायर फाइटर और ये अफसरान सर्वे करेंगे तो आपके फैक्ट्री के रूट्स वगैरह का भी पता चल जाएगा। तो ये है कि जिस तरीके से भी कोशिश होती है कि इसको सेव किया जाए, शहर को सेव किया जाए, इनकी प्रॉपर्टी को सेव किया जाए, चाहे इंसानी जान हो, तो मकसद ये है कि इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और आज भी माशाल्लाह से जितने भी यहाँ पे ट्रेनर्स आए हैं, ये भी अगर यहाँ पर जब ट्रेनिंग्स ले रहे हैं तो यकीनन ये भी निकल के किसी न किसी शोबे में जाके अपना किरदार अदा करेंगे। लिहाजा बहुत जरूरी है कि इसको जो है हम अपने अमली सतह पर जो नीचे की तरफ लेके जाएं, यहाँ तक कि हमारे जो फायर स्टेशन है 28 फायर स्टेशन है 3 करोड़ की आबादी पर। और मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा खुशी होती है जब फॉरेंस आते हैं और वो ढूंढते हुए आते हैं कि फायर स्टेशन कहाँ है, और वो फिर हमसे मालूम करते हैं कि आपके फायर टेंडर का क्या सिस्टम है, फायर का क्या निजाम है। हम एक्सप्लेन करते हैं जो भी पोजीशंस होती है, जो भी हमारे अपने महदूद वसाइल से, लेकिन ये है कि जिस तरीके से हमारे लोग फायर फाइटिंग्स कर रहे हैं और जिस तरीके से इस शहर को महफूज बनाया हुआ है, हमारा अपना रिस्पॉन्स टाइम 2 से 3 मिनट है और हर मुमकिन कोशिश होती है कि इस शहर को महफूज बनाया जाए। और मैं यही चाहूंगा कि यहाँ पर अगर ये जो ट्रेनिंग्स हो रही है, ट्रेनर्स हैं, तो यकीनन कुछ सीख के जाएं और जितने भी मेहमान गिरामी हैं वो भी मकसद इन चीजों को और मजीद बेदार करें ताकि लोगों की जानो माल को महफूज बनाया जा सके। असल में हम लोग क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगा लिए NFPA के लिहाज से, तो वो NFPA के लिहाज से सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ NFPA 10 को आपको नहीं देखना है बल्कि पूरा सिस्टम देखना है। ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है, इब्तदा जो हुई थी NFPA की वो स्प्रिंकलर से हुई थी और प्लम्बरों ने बनाया था ये NFPA। ऐसी जैसे हमारे में बड़ी बड़ी आगे लगती है ना, ऐसे बड़ी अमेरिका में भी आगे लगती थी, बड़े परेशान थे वो। शिकागो की सबसे बड़ी आग लगी उस वक्त 1872 में। उसके बाद ये सब परेशान हो गए फैक्ट्री वाले, उन्होंने कहा ये आग लगती है, फायर ब्रिगेड जब तक के पहुंचते आग तो सब कुछ तबाह कर देते हो, क्या करें। उन्होंने क्या किया, शावर लगाया, अपनी कंपनियों में शावरिंग सिस्टम लगाया और मैनुअल प्लम्बरों से। और 1896 में उन्होंने ये किया कि पहली मरतबा जब ये बनी NFPA, वो इसलिए बनी कि इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए।
अब हमारे वहाँ सूरत हाल यही है, ये स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ पर मौजूद है, जहाँ से इब्तदा हुई। और NFPA 13 जो था स्टैंडर्ड जो है वो पहले बना है, सबसे पहला 1 नहीं बना है, 13 पहले बना है, ठीक है। तो हमारे वहाँ क्या करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर कुछ रेगुलेशंस हमारे ऐसे हैं कि रेगुलेशंस भी नहीं है। अब फायर एक्सटिंग्विशर्स और हाइड्रेंट सिस्टम, जब रेगुलेटर ही वो उसको पता नहीं है कि पैसिव फायर फाइटिंग क्या है, और सॉरी पैसिव फायर प्रोटेक्शन क्या है, और उससे आगे किस तरीके से जाना है करो, वो अलग चीजें हैं, तो शायद डिस्कस करेंगे तो वो क्या होगा। चीजें, ये तमाम चीजें हैं। और उसके बाद ये बात जो है ना, हम मुसलमान जो छोड़ देते हैं ना अल्लाह पे ज्यादातर मामला, तो इस पे एक बड़े अच्छा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवक्कुल पे जो है ना वो आपका लेक्चर दे रहे थे। तो उनसे एक सहाबी ने पूछा कि मेरे पास ऊँटनी है, ये बांध के सोना तवक्कुल है या खुला छोड़ दूं ये तवक्कुल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको बांध के सोना तवक्कुल है। इट मीन से पहले सब इंतजामात करने हैं आपको, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ना है, ठीक है। इब्तदा जो है पहले अपने इंतजामात से। तो 2 मैसेज है मेरे, एक तो जब भी NFPA को आप लागू करें वो पूरा का पूरा कंप्लीट सिस्टम होना चाहिए, सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं होनी चाहिए। और ये अलार्म सिस्टम जो है ये एवोक्वेशन के लिए, इस वक्त पूरे कराची के अंदर अलार्म सिस्टम और फायर एक्सटिंग्विशर्स, कहीं पे भी स्प्रिंकलर सिस्टम आपको बहुत कम मिलेंगे, 5 स्टार होटल इन जगहों पे मिलेंगे। तो आग बुझाने का निजाम नहीं है, आग से भागने का निजाम है। अलार्म आपको देते हैं ताकि आप निकल जाए उस जगह से, और उसके बाद जो है आग बुझाने का काम ये करेगा। अगर स्प्रिंकलर मौजूद नहीं है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर लेके दोबारा दाखिल भी नहीं हो सकते उस जगह पर, वहां पर आप दाखिल ही नहीं हो सकते, क्योंकि स्मोक जो है ना आपको ये मौका नहीं देता कि आप दोबारा, जब स्मोक जनरेट हो जाए उसके बाद हर तरह की फायर फाइटिंग कोई आम आदमी नहीं कर सकता, सिर्फ फायर फाइटर कर सकता है। थैंक यू।